we welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन में हम आपका स्वागत करते हैं। Divine connection is possible through Jesus Christ. ईश्वरीय संपर्क ये तो यीशु मसीह के द्वारा ही संभव होता है। You know, these days we are meditating very much on the cross of Jesus Christ throughout Christendom. पूरी मसीहत में इन दिनों में हम यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर मनन करते जाते हैं। People call these days even Lenten days, and they practice fasting and meditation on the cross almost every day. लोग इन्हें लेंटन डेज कहते हैं और हर दिन उपवास करते हुए परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं। But actually, we want to first of all emphasize our very title of the program, which is Divine Connection, and I want to say that it is through Jesus we are connected to God. हमारे प्रोग्राम के शीर्षक के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है ईश्वरीय संपर्क यानी डिवाइन कनेक्शन, यानी केवल यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के साथ संपर्क में आते हैं। And when you think about the connection that Jesus Christ made between man and God, cross becomes the center. जब आप देखते हैं कि यीशु मसीह ने मनुष्य और परमेश्वर को जब जोड़ा, एक साथ संपर्क में लाया, तो क्रूस इसका केंद्र रहा है। The vertical part of the cross, which is connecting man to God, very clearly reveals that it is only through Jesus you and I can come near to God. क्रूस का ये जो सीधा भाग है, यानी मनुष्य परमेश्वर के साथ संपर्क में आता है, ये तो केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही संभव हो सका है। So when you read the crucifixion of Jesus Christ, particularly in the Bible, which is meditated on these days very often, I read it with passion. तो जैसे आप बाइबल में यीशु के क्रूसीकरण के बारे में पढ़ते हैं, जो कि इन दिनों में अक्सर किया जाता है, तो मैं इसे पढ़ते हुए बड़ी जिज्ञासा से पढ़ता हूँ। You know, you look at the way Jesus was suffering, and when you realize that it is done for you and me, then you get all emotions filled up, owing yourself as the responsible person for Jesus Christ's death on the cross. जब यीशु को हम इतनी वेदनाओं में देखते हैं और जानते हैं कि उसने तो ये आपके लिए और मेरे लिए किया है, तो निश्चय ही हम अपने आप को इस तरह से देखते हैं कि क्रूस पर यीशु की मृत्यु के लिए आप ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं। There is no point in getting upset with Judas. यहूदा पर क्रोधित होने का कोई मतलब नहीं है। There is no point in getting upset with the Roman soldiers who crucified Jesus. और यीशु को क्रूस पे चढ़ाने वाले रोमी सिपाहियों पर भी क्रोधित होने का कोई अर्थ नहीं है। There are many people who made fun of Jesus. When you read that, oh, why these people are doing like this, you need not think that way. बहुत से लोगों ने यीशु का मजाक उड़ाया। जब आप पढ़ते हैं तो आप कहते हैं ऐसा क्यों किया, आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए। You know why I say that? जानते मैं ये क्यों कह रहा हूँ? Ultimately, the cross is the plan of God for mankind. आखिरकार जो क्रूस है वो तो मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर की योजना है। Though some human beings are involved in the betrayal and in the crucifixion and in the judgment, everything human beings are involved, but when you look at the scripture, it very clearly points out that it is the plan of God because of which Jesus died on the cross. हालांकि मनुष्य इसमें जुड़े हैं, पकड़वाने में, क्रूसीकरण में, उसका न्याय करने में, यहाँ पर मनुष्य तो जुड़े हैं, लेकिन जब आप वचनों में देखते हैं तो ये बहुत ही स्पष्ट रीति से बताता है कि यीशु को क्रूस पर भेजना ये परमेश्वर की योजना थी। When you read the book of Isaiah, 53rd chapter, a chapter that deliberates a lot of details about the cross of Jesus Christ and the suffering that he is going to go through. In the 10th verse, it says like this. यशायाह अध्याय 53 जो कि यीशु के क्रूसीकरण के बारे में विवरण से बताता है, जब आप इसे पढ़ते हैं तो इसमें वचन 10 इस तरह से कहता है। Let me read it for you. Please pay very close attention to this. मैं इसे पढ़ता हूँ, आप इसे गौर से सुनिए। Yet it was the Lord's will to crush him and cause him to suffer. And though the Lord makes his life an offering for sin, he will see his offspring and prolong his days. And the will of the Lord will prosper in his hand. यशायाह 53:10 तो भी यहोवा को ये भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे, तब वो अपना वंश देखने पाएगा।
वो बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। There are a lot of details found in this verse. इस वचन में बहुत सा विवरण पाया जाता है, But I want to just mention the very first part and emphasize the importance of it. मैं इसके पहले भाग पर जोर दूंगा और इसके महत्व के बारे में आपको बताऊंगा। Yet it was the Lord's will to crush him. तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, इस तरह ये कहता है। Isn't that interesting? क्या ये दिलचस्प नहीं है? Very often we try to think, people put Jesus Christ on the cross and killed him. कई बार हम सोचते हैं कि लोगों ने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया और उसे मार दिया। A very important perspective is given here. It is God's will that Jesus has to die. यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण नजरिया दिया गया है कि ये तो परमेश्वर की इच्छा थी कि यीशु मसीह मर जाएं। If it was not God's will, nobody could have crucified Jesus. अगर ये परमेश्वर की इच्छा नहीं होती तो कोई भी यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ा सकता था। You can remember the prayer he does in the Garden of Gethsemane. गत्समनी के बाग में उसने जो प्रार्थना की उसे आप स्मरण कर सकते हैं। Father, if it is your will, take this cup away from me. हे पिता, यदि तेरी इच्छा हो तो इस कटोरे को मुझसे दूर कर दे। One time, second time, third time he prayed the same prayer. पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार उसने यही प्रार्थना की And God said, this is my will. And Jesus obeyed that will. और परमेश्वर ने कहा यही मेरी इच्छा है, और यीशु ने परमेश्वर की उस इच्छा की आज्ञा मानी। So we understand here that the salvation and the cross has been the plan of God throughout history ever since mankind sinned. तो हम इस बात को समझते हैं कि जब से मनुष्य ने पाप किया तब से पूरे इतिहास में उद्धार तो परमेश्वर की योजना है। In the book of Galatians chapter 4 verse 4. गलातियों अध्याय 4 वचन 4 में देखिए। Let me read that for you. आइए इसे पढ़ते हैं। But when the time had fully come, God sent forth his son, born of a woman, born under law. गलातियों 4:4 परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। It's very important to note that God was waiting for the appropriate time to send his son into this world to die for us on the cross of Calvary. ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर सही समय का इंतजार कर रहे थे कि अपने पुत्र को इस संसार में भेजे ताकि वो हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर मर जाएं। Therefore the cross is very, very important to me, to you. और इसीलिए क्रूस तो मेरे लिए और आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। But whenever look at the cross, it is not very appealing to many people. जब हम क्रूस की ओर देखते हैं तो निश्चय ही ये तो लोगों के लिए बहुत ही आकर्षक या सुहावना नहीं दिखाई देता है। Not many people are impressed with the cross. और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि क्रूस के द्वारा बिल्कुल प्रभावित नहीं होते हैं। Because a man was hanging on the cross helplessly. क्योंकि क्रूस पर वो मनुष्य असहाय रूप में लटका हुआ था, fully bleeding, लहूलुहान हो चुका था, and everyone were making fun of him, mocking at him. और हर कोई उसका वहां पर मजाक उड़ा रहा था। He was almost left alone. उसे वहां पर अकेला छोड़ दिया गया। And it was at that time when you look at that, a lot of people think, is this the way to save? इस समय ये इस तरह से था, अगर आप उसे देखते तो निश्चय ही कहते कि मनुष्य जाति के उद्धार के लिए क्या केवल यही एक तरीका है? If you ask me that question, I will say that yes, that is God's plan to save mankind. अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि हाँ, मनुष्य जाति को उद्धार देने के लिए ये परमेश्वर की योजना है। What we cannot see in the cross, God sees. हम क्रूस में जो नहीं देख सकते हैं उसे परमेश्वर देखते हैं। In fact, cross is described as the power of God. It was revealed on the cross. सच में क्रूस को परमेश्वर की सामर्थ के रूप में दिखाया गया और इसे वहां पर प्रकट किया गया। Apostle Paul spoke the gospel or preached the gospel to many people. प्रेरित पौलुस ने सुसमाचार के बारे में बहुत से लोगों को बताया, बहुत से लोगों को प्रचार किया। And when he was preaching, probably a lot of people thought the cross was something foolish. और जब वो प्रचार कर रहे थे तो शायद उस समय बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि क्रूस तो मूर्खता है। That's why he writes in the book of 1 Corinthians chapter 1 verses 18 and 19 this way. पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 18 और 19 में वो इस तरह से लिखता है, For the message of the cross is foolishness to those who are perishing,
but to us who are being saved, it is the power of God, for it is written, I will destroy the wisdom of the wise, the intelligence of the intelligent I will frustrate. क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। इस तरह से ये वचन कहता है। So, when you look at this, Apostle Paul is trying to convey to the people that there is a way which is very different from mankind, which is very different from human beings' general understanding. God works. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस ये बता रहा है कि मनुष्य की समझ से बिल्कुल अलग तरीके से ही परमेश्वर काम करते हैं। So he says that cross is foolishness for those people who are perishing. वो कहता है कि नाश होने वालों के लिए क्रूस तो पूरी तरह से मूर्खता है। For intelligent people who think that they are intelligent, for them it may look foolishness. और ऐसे लोग जो खुद को ज्ञानवान समझते हैं, खुद को ज्ञानी जानते हैं, उनके लिए ये शायद मूर्खता दिखाई दे। But God is different. लेकिन परमेश्वर तो पूरी तरह से अलग हैं। He made foolish the wisdom of the world. और संसार का जो ज्ञान है, जो ज्ञानवान है, परमेश्वर उन्हें मूर्ख साबित करते हैं। Paul continues to say very clearly that the Jews demand signs. पौलुस ने आगे बहुत ही स्पष्ट रीति से कहा कि जो यहूदी है वो तो चिन्ह चाहते हैं। The Greeks looks for wisdom. और यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं। But we preach Christ crucified, who is the stumbling block to the Jews and foolishness to the Gentiles. परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। My dear friends, when you think about the cross, that's how people in the first century looked at, and Paul is writing like this. मेरे दोस्तों, जब आप क्रूस की ओर देखते हैं तो पहली सदी के लोग ऐसे ही देखते थे और पौलुस ये लिखता है। What do you think about the cross? आप क्रूस के बारे में क्या सोचते हैं? When you look at the cross, what message does it give you? Give me. जब आप क्रूस की ओर देखते हैं तो ये आपको क्या संदेश देता है? ये मुझे क्या संदेश देता है? Why God chose the cross? परमेश्वर ने क्रूस को ही क्यों चुना? What I can learn from it? मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? What God was trying to communicate to me? परमेश्वर मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? What I'm going to share are not my own ideas. मैं जो बताने वाला हूँ ये मेरे खुद के विचार नहीं हैं। These are truths that are revealed in God's word. ये तो ऐसे सत्य हैं जो परमेश्वर के वचन में प्रकट किए गए हैं। So, what the Bible says about the cross, what cross does to you and me, what cross reveals to you and me, that is what we wanted to share today. क्रूस हमारे ऊपर क्या प्रकट करता है, क्रूस ने हमारे लिए क्या किया है, इसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। And the very first thing the cross shows to me, reveals to me, is this: God loves me. और सबसे पहली बात जो क्रूस मुझे बताता है, मुझ पर प्रकट करता है, वो तो बस यही है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। Isn't it very amazing and important? क्या ये सच में बहुत ही अद्भुत और बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है? God loves me. परमेश्वर मुझसे प्रेम रखते हैं। Very popular, well-known golden text of the Bible called as John 3:16. बहुत ही विख्यात और बाइबल का सुनहरा वचन कहते हैं यूहन्ना 3:16। For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 ये कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। The reason for God sending his Son into this world is love. परमेश्वर ने इस संसार में अपने इकलौते पुत्र को भेजा, इसके पीछे कारण तो उसका प्रेम है। And that's what we read here. He so loved the world that he gave his Son. और यही तो हम पढ़ते हैं कि उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। So when you look at the cross, what happened on the cross in which God's will was fulfilled, you and I realize He loves me so much. जब हम क्रूस की ओर देखते हैं कि क्रूस पर क्या हुआ, हम पाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई और परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। My dear friends, you may think that, oh, this truth has been told so often and I know it. आप कहेंगे ये सच्चाई तो कई बार बताई जाती है और मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। But I feel it is worthy of listening to
paying attention to every day. This is something you and I need to realize in our mundane walk with God and with the people of this world, that this fact, God loves me very, very much. मैं सोचता हूँ कि सच में ये योग्य है कि हर दिन इससे हम सुने, इसकी ओर गौर करें। परमेश्वर के साथ हमारे चलने में और इस संसार के लोगों से व्यवहार में प्रतिदिन हमें ऐसा ही करना है। और ये सच्चाई जाननी है कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम रखते हैं। When we talk about the extent of love God revealed for you and me when He died on the cross, you cannot measure it. परमेश्वर का प्रेम जिसके कारण यीशु क्रूस पर मर गए, तो हम सच में इस प्रेम को नाप नहीं सकते हैं। And two verses I want to point out. मैं दो वचन बताना चाहूंगा। 1 John chapter 4 verses 9 and 10. पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 9 और 10 पढ़ते हैं। This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love. Not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। The love expressed here is revealed in these words. यहाँ जो प्रेम प्रकट किया गया है वो इन शब्दों में दिखाया गया है। He sent His one and only Son. उसने अपने इकलौते यानी एकमात्र पुत्र को भेजा। Oh, that means He had only one Son and He was willing to give Him up for us. इसका मतलब ये है कि उसका इकलौता पुत्र है और वो तो उसे हमारे लिए देने को तैयार है। The other way we can look at from this verse is He loved us even before we loved Him. और दूसरी बात जो हम इस वचन से देख सकते हैं कि हमने उससे प्रेम करने के पहले से उसने हमसे प्रेम रखा है। So this is the understanding of His love. ये उसके प्रेम की समझ है। So when we say God loves me, hey, it is not reciprocal. जब हम कहते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, तो ये ऐसा नहीं कि हमने उससे प्रेम किया इसलिए वो करते हैं। But He loves, that's His nature. You cannot change that. लेकिन वो प्रेम करते हैं, ये उसका स्वभाव है और आप इसे कभी बदल नहीं सकते हैं। In the book of Romans chapter 5 verse 8, that's the third verse I want to point out from this section. रोमियो अध्याय 5 वचन 8 जो इस वचन भाग से मैं आपको इस समय बताना चाहता हूँ। But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए So मरा। the love revealed on the cross for you and me, in which we realize God loves me. तो क्रूस पर जो प्रेम परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए प्रकट किया, उसमें हम जानते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम रखते हैं। While we were still sinners, He loves me. जबकि हम पापी ही थे तब भी उसने हमसे प्रेम रखा। I'm not a good man. मैं तो कोई भला मनुष्य नहीं हूँ। I'm not somebody who is worthy of someone giving their life for me. मैं इस योग्य नहीं हूँ कि कोई व्यक्ति अपनी जान मेरे लिए दे दे। But here it says very clearly, God demonstrates His love in that. लेकिन यहाँ स्पष्ट रीति से कहता है परमेश्वर अपना प्रेम इस तरह से दिखाते हैं। When you look at the cross, the very, very fundamental, yet at the same time very important message I get is God loves me. जब आप क्रूस की ओर देखते हैं तो सबसे बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण संदेश पाते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम रखते The हैं। second important message I receive from the cross is God is faithful. क्रूस से जो दूसरा महत्वपूर्ण संदेश मैं पाता हूँ वो ये है कि परमेश्वर विश्वास योग्य हैं। You know why I say that? जानते हैं मैं ये क्यों कह रहा हूँ? When mankind sinned, in the very first book of the Bible, Genesis chapter 3 verses 15, we read, and I will put enmity between you and the woman and between your offspring and hers. He will crush your head, he will strike his heel. जब मनुष्य ने पाप किया, बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति अध्याय 3 में वचन 15 में हम पढ़ते हैं, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। What happened on the cross was not an instant plan of God. क्रूस पर जो हुआ ये तो परमेश्वर की तुरंत योजना नहीं थी। It is not a sudden thought God had. ये ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने अचानक से विचार किया। It was foretold when mankind sinned their very first time.
और जब मनुष्य ने पहली बार पाप किया था तभी उसे ये सब बता दिया गया था। So what do we see here on the cross? तो यहाँ पर क्रूस पर हम क्या देखते हैं? What was said in Genesis 3:15 in the cross or on the cross, it was fulfilled. उत्पत्ति 3:15 में हम जो पढ़ते हैं क्रूस में, या कहिए कि क्रूस पर ये सारी बातें वहां पर पूरी हो गई। God crushed the head of Satan on the cross. क्रूस पर परमेश्वर ने शैतान के सिर को कुचल दिया, But in the process, Satan crushed the heel of Jesus. और इस क्रिया में शैतान ने यीशु की एड़ी को डसा या उसे कुचल दिया। So, a death that he has gone through is actually in God's eyes and in our eyes, according to the scripture, is victory over Satan. प्रभु यीशु जिसमें से होकर गए वो तो परमेश्वर की दृष्टि में और हमारी दृष्टि में भी निश्चय ही शैतान के ऊपर विजय So, है। the main point I want to share here is what he said in the very first book of the Bible. He fulfilled it on the cross. मैं यहाँ पर मुख्य बात बताना चाहता हूँ कि बाइबल की पहली किताब में जो कहा गया उसने क्रूस पर उसे पूरा किया। So, Jesus did not give up his calling. तो यीशु ने अपनी बुलाहट को नहीं छोड़ा, He remained faithful. वो विश्वास योग्य बने There रहे। were a lot of temptations that were coming on his way. Oh, if you are the Son of God, come down from the cross, one man was. उसकी बहुत सी परीक्षा हुई। एक मनुष्य ने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू क्रूस से नीचे उतरा। Satan tempted him. If you are the Son of God, tell these stones to become bread. शैतान ने उसकी परीक्षा की, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को रोटी बनने की आज्ञा Oh, दे। there were a lot of temptations and tensions that Jesus experienced before faithfully coming to the cross without sin, yet he was faithful, we can say. क्रूस पर आने के पहले यीशु ने बहुत सी परीक्षाओं का सामना किया और वो निष्पाप रहे और वो विश्वास योग्य रहे, इस तरह से हम कह सकते हैं। My dear friends, I want to tell you, he is faithful today. मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो आज भी विश्वास योग्य हैं। In your life, in my life, he is faithful. आपके और मेरे जीवन में वो विश्वास योग्य I हैं। can assure you 100% whatever he has said in his word about me, about you, is going to be fulfilled. मैं आपको 100% शाश्वती दूं कि उसने वचन में आपके और मेरे बारे में जो भी कहा है वो तो निश्चय ही पूरा होगा। That's what we talk about, his faithfulness, and cross reveals his faithfulness to us. और इसीलिए हम उसके विश्वास योग्यता पर बात करते हैं और उसका क्रूस हम पर उसकी विश्वास योग्यता प्रकट करता है। And thirdly, God is just. और तीसरी बात यह है कि परमेश्वर तो न्यायी हैं। These are all the qualities or attributes of God. ये सब परमेश्वर के स्वभाव गुण हैं। Romans chapter 3 verse 26. रोमियो अध्याय 3 वचन 26 ये कहता है, He did it to demonstrate his righteousness at the present time, so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus. वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। So, when you read this verse, we see here on the cross the justice of God is revealed. जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि क्रूस पर परमेश्वर का न्याय प्रकट हुआ। He cannot leave the sin go unpunished. वो पाप को दंड दिए बिना नहीं रह सकते हैं। He had to punish the sin. उसे पाप को दंड देना ही He होगा। can't close his eyes against the sin. पाप के विरुद्ध में वो अपनी आंखें बंद करके नहीं रह सकते। How did he do it? उसने ये कैसे किया? He did not want to kill man, humankind. वो मनुष्य को मारना नहीं चाहते थे, But he killed his own son as a sacrifice so that his justice is fulfilled and cross reveals his justice. उसने अपने ही पुत्र का बलिदान किया ताकि न्याय कर सके और क्रूस उसके न्याय को प्रकट करता And है। that's why you and I have grace today. और इसीलिए आज आप पर और मुझ पर अनुग्रह हुआ है। The grace of God appeared and he gave salvation to all of us. परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ और उसने हम सबको उद्धार दिया है। And that's why, the idea of substitution is mixed with grace. और इसीलिए जो हमारे बदले में जो विचार है ये तो अनुग्रह से मिला है। I have to die, मुझे मरना था, but instead of me, Jesus died on the cross. लेकिन मेरे बजाय यीशु मसीह क्रूस पर खुद मर गए। That's why I am saved.
और इसलिए मैं बच गया, not by works. अपने कामों से नहीं। And Bible says very clearly, no man can boast that he saved himself. इसलिए बाइबल स्पष्ट कहती कि कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मेरा उद्धार तो मेरी ही वजह से हुआ है। My dear friends, it gives me great joy actually to share about this God. मेरे दोस्तों, इस परमेश्वर के बारे में बताने से मुझे बड़ी खुशी A मिलती है। God who is faithful. ऐसा परमेश्वर जो विश्वास योग्य है, A God who loves me. परमेश्वर जो मुझसे प्रेम रखते A हैं, God who is very just. परमेश्वर जो कि बहुत ही न्यायी He हैं is also gracious. और साथ ही वो अनुग्रहकारी भी हैं। When I look at the cross, that's a message I am getting. जब मैं क्रूस की ओर देखता हूँ तो मुझे यही संदेश मिलता है, And I am sure you too feel the same way. और मैं जानता हूँ आप भी ऐसे ही महसूस करते The हैं। grace of God, justice of God, the faithfulness of God, and the love of God. परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर की विश्वास योग्यता और परमेश्वर का प्रेम। And as we celebrate this Good Friday and the season where Jesus died on the cross, let us continue to focus on His love. जैसे कि हम गुड फ्राइडे और ये समय मनाते हैं जब यीशु क्रूस पर मरे, तो आइए निरंतर हम उसके प्रेम पर गौर करते जाएं। God bless you. परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number